Hello students, let us discuss the remaining NCERT question and answers for chapter light. So our question is, one half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. Here you can see this is a convex lens and half of this convex lens is covered with a black paper. This means no light rays can pass through this portion of the convex lens because it is covered. Now it has been asked whether this half covered convex lens is able to produce a complete image of the object or not. So answer is yes. This half covered convex lens will produce a complete image of the object because half of this convex lens is still not covered. So light rays can pass through this portion of the convex lens and image will be formed. And you can verify this by obtaining the image of an object on a screen by using this half covered convex lens. देखिए हाफ कवर्ड कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका मतलब है कि इसका हाफ पोर्शन एक ब्लैक पेपर से हमने कवर करते हैं और हाफ जो पोर्शन है इसका वो ओपन है लाइट रेज के लिए, तो लाइट रेज आराम से उसमें से जा सकती हैं. इस वजह से जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी कंप्लीट इमेज हमको मिलने वाली है और इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया जा सकता है. अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लें, ऑब्जेक्ट आपका कोई ट्री हो सकता है या कोई कैंडल हो सकती है, तो अगर आप इस कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे तो जो इमेज आपको मिलेगी वो कंप्लीट इमेज मिलेगी. ऐसा नहीं होगा कि इमेज आपको हाफ मिले क्योंकि लेंस आपका हाफ कवर्ड है, नहीं, इमेज कंप्लीट मिलेगी. कुछ फेंट जरूर हो सकती है पर जो इमेज मिलेगी वो कंप्लीट ही होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस मीन्स convex lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. तो देखिए, write those values which are given to you and those values that you have to calculate. So u is equal to -25. माइनस साइन देखिए हमने अपनी तरफ से पुट किया. न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है. माइनस क्यों लगाया? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस की लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड के जितने भी डिस्टेंसेस हैं लेंस से वो सब हम लोग नेगेटिव लेते हैं. सो यू इज -25. वी हैव टू फाइंड आउट एफ प्लस 10 सेंटीमीटर. प्लस क्यों लगाए यहाँ पर? बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ पुट दीज वैल्यूज इन लेंस फॉर्मूला. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. Out of these three values, that is v, u and f, two values are known to us and we can easily calculate the third one. So by solving this equation, we get v is equal to plus 16.67 centimeter. So plus sign means that the object image is formed to the right of the lens. यानी जो image बन रही है हमारी वो लेंस की राइट साइड में बनेगी. और कितने डिस्टेंस पर बनेगी? एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.67 सेंटीमीटर. नाउ मैग्निफिकेशन इज v by u. दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 16.67, दैट इज द इमेज डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन टू अस इन द न्यूमेरिकल, सो m is equal to -0.66. Minus means that your image is inverted and 0.66, so this value is less than 1. So 0.66, that is this value is less than 1, means that the size of image is less than the size of the object. क्योंकि ये वैल्यू एक से छोटी है इसका मतलब जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है. Now there is another formula for magnification in terms of height of the image and height of the object, that is m is equal to h2 by h1. So m is already known, -0.66. h2 you have to find out. h1 is given to you in the numerical. और प्लस क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इन दी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है. सो h2 इज -3.33 सेंटीमीटर. सो साइज ऑफ इमेज इज 3.33 centimeter. This is the ray diagram. Here you can see size of the image is smaller than the size of object and the size of image is 3.33 centimeter. माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि जो इमेज है वो उल्टी बन रही है. Next question, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object from the lens? Draw the ray diagram. So this is object distance u, that is to be find out. Image distance v -10, क्योंकि देखिए कॉन्केव लेंस के केस के में जो इमेज बनती है वो हमेशा लेफ्ट में ही बनती है. हमको
वर्चुअल इमेज मिलने वाली है। एफ इज -15 सेंटीमीटर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो देखिए हमने माइनस लगाया, न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ था कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, माइनस साइन हमने अपनी तरफ से लगाया। अगर हम अपनी तरफ से माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो जो न्यूमेरिकल है वो गलत होगा, आंसर गलत आएगा। सो पुट राइट साइंस विद द वैल्यूज गिवन टू यू। So f is -15. Now put these values in lens formula. 1 by v minus 1 by is equal to 1 by f. So two values are known, third value can be calculated. So u is -30 centimeter. तो आप देखिए -30 का मतलब क्या है कि the object is to the left of concave lens. So minus, and it is at a distance of 30 centimeter from the concave lens. So this is the ray diagram. This is your object. This is the virtual image, and this is also erect. And size of this image is smaller than the size of object. Next numerical. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. So here object distance is -10. Image distance you have to find out. Focal length +15 because this is a convex mirror. सो 1 बाई हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, दिस न्यूमेरिकल इज अबाउट कॉन्वेक्स मिरर. सो 1 बाई वी -1/10 इज इक्वल टू 1/15. अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, सो v इज इक्वल टू +6 सेंटीमीटर. तो प्लस का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इमेज है इट विल बी फॉर्म्ड टू द राइट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब बिहाइंड द मिरर. And since the image is found behind the mirror, so it is going to be virtual and direct. Next question, the magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? Plus means that the image is virtual and direct, and 1 means the size of image is equal to the size of object. Next, an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image, its nature, is its size. So u is -20, v you have to find out, radius of curvature is 30 centimeter, so focal length is half the radius of curvature, it is denoted by small f, so +15 centimeter. So mirror formula use कर लेंगे, 1 by v plus 1 by is equal to 1 by f. Now putting these values and solving them, we get v is equal to +8.5 centimeter. So plus means it is to the right of the convex mirror and at a distance of 8.57 centimeter from the mirror. So it is formed behind the convex mirror. So magnification is -v by u. This is the formula for magnification. So v अभी अभी कैलकुलेट किया, u न्यूमेरिकल में दिया ही हुआ था, तो मैग्निफिकेशन इज 0.42. देखिए प्लस मीन्स योर इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधी इमेज बनने वाली है. 0.42 it is less than 1. So this means that size of the image is smaller than the size of the object. There is another formula for magnification in terms of height of the image and height of the object, that is m is equal to h2 by h1. अभी m तो हमने कैलकुलेट कर लिया, h2 हमको निकालना है और h1 न्यूमेरिकल में दिया हुआ, सो h2 is 2.1 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर, इमेज का साइज 2.1 सेंटीमीटर. सो आप देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो कम है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. So object distance is given to you, माइनस साइन लगा दिया, v you have to find out. क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो देखिए माइनस हमने अपनी तरफ से लगाया, न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ था. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, हाइट ऑफ द इमेज यू हैव टू फाइंड आउट. सो सबसे पहले यूज कीजिए मिरर फॉर्मूला, 1 by v plus 1 by is equal to 1 by f. सो हमको u और f की वैल्यू दी हुई है तो v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे. इट इज गोइंग टू बी -54 सेंटीमीटर. सो दिस मीन्स द इमेज इज टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्केव मिरर and at a distance of 54 centimeter from it. The nature of image obtained is real and inverted.
अब इस केस में क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, क्योंकि ये सामने बन रही है, उसके कॉन्केव मिरर के सामने इमेज बन रही है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. So h2 upon h1 is equal to minus v by u. h2 you have to find out, h1 is given to you, v and u are known to you. So आप इसको सॉल्व करेंगे तो h2 कितना आएगा, -14 सेंटीमीटर. तो देखिए माइनस का मतलब क्या है कि जो आपकी इमेज है वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और उसका साइज क्या है, 14 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस. तो देखिए माइनस पावर तो कॉन्केव लेंस की ही होती है, सो दिस इज अ कॉन्केव लेंस. नाउ पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स, सो f इज इक्वल टू 1/2.0 मीटर. तो क्योंकि देखिए ये जो फोकल लेंथ है तो मीटर में, तो जब हम इस फॉर्मूले को यूज करके फोकल लेंथ निकालेंगे तो वो मीटर्स में आएगी. आप जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने अभी तक देखे उसमें जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में ही रहती है. सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, सो इनटू 100. सो फोकल लेंथ इज -50 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, देखिए हमेशा ही कॉनकेव लेंस की. तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव होगी. अ डॉक्टर हैज prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is this prescribed lens diverging or converging? सो पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस हम लोग बोलते हैं. पावर इज इक्वल टू 1/f, सो f इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1.5. सो इसको सॉल्व करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे जैसा हमने इस न्यूमेरिकल में किया. सो दिस इज गोइंग टू बी +66.7 सेंटीमीटर. सो दिस चैप्टर लाइट इज ओवर. नाउ you have to prepare notes of this chapter in your fair notebook. So write these questions in your fair notebook. Thank you.